everyone. This is the fifth session of the course Essential Skills in Science and Environment Communication. और as you all know, हम लोग Unit 1 पढ़ रहे हैं, titled as Science, Environment and Communication. That's an introductory Unit 1. हम लोगों ने इससे पहले 4 सेशन ले चुके हैं और आज 5th सेशन है और आज Unit 1 का ये आखिरी टॉपिक है जो हम लोग डील करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो साइंस मॉडल्स पर आधारित है। डेफिसिट मॉडल्स है, कल्चर डिस्टेंस मॉडल है। इन मॉडल्स के विषय में हमारे एक्सपर्ट आज के आप लोगों को वो ज़्यादा बेहतर हैं जो आपको बताएंगे कि वो क्या है। मैं आप लोगों से आज के एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। डॉक्टर सुरजीत सिंह दबास जी हैं। डॉक्टर सुरजीत सिंह दबास वर्तमान में योगा साइंस डिपार्टमेंट इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रिवाड़ी में चेयरपर्सन के तौर पर कार्यरत हैं। इससे पहले 32 वर्षों तक सर CSIR के साथ जुड़े रहे। He worked as a core team member conducting research on the issues of public understanding of science. He has been involved in large-scale survey studies on public understanding of science. Sir has conducted studies during Kumbh and Earth Kumbh Melas starting from 1989 till 2019. He is also involved in HIV/AIDS awareness programs in resettlement colonies, schools, and colleges of Delhi and Haryana. As a part of science communication activities, he was associated with production of Eureka program for Rajya Sabha television channel. This is a series associated with life and work of eminent scientists of the country and was associated with production of more than 100 episodes. He participated and presented research outputs at national and international conferences on science communication and public understanding towards it. The most important part is that he also participated in Bharat Jan Vigyan Jatha in 1987, and he was a team member of the research group who suggested cultural distance model of public understanding of science, which got recognition all over the world. Cultural distance model is one of the topic of today's discussion, and it's a great opportunity for all of us that Dr. Dabas is here and we'll get to know about all these models from himself. With this, I welcome Dr. Dabas on behalf of BGMC Department, Ramlal Anand College, Delhi University, and Vigyan Prasad, and hand over the session to you, sir. Thank you, Dr. Shweta. A very good morning to all of you, students, teachers, and the teacher in charge. मैं आपको एक बार सर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी डॉक्टर राकेश कुमार, प्रोफेसर राकेश कुमार सर से। ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ BGMC, रामलाल आनंद कॉलेज। Good morning, sir. Morning. On behalf of RLA College, Department of Hindi Journalism and Mass Communication, I welcome you to this session, sir. And we are looking forward to your lecture. And we are hopeful and we are confident that our students will learn a lot from you. And we heartily welcome you, sir. Thank you, Professor Rakesh. I'm not a person who can speak and give speeches or whatever, but I generally conduct interactive sessions where it's both way process. Even students can participate with at any point of time, not at the end of the lecture. So that's more interactive because बीच में होता है ऐसा है कि हम जो मुझे पूछना है वो मैं भूल जाता हूँ, तो I should not miss that opportunity. हर student के लिए मैं बता देता हूँ कि at any point of time he or she can reach her or his hand and ask question. So make it more interactive rather than a lecture. Lecture is, I keep all the lectures for the politicians and I'm not a politician. That's, that's Dr. Shweta, that's not the complete introduction. My complete introduction is that I belong to rural areas of northern part of the country, studied like students studying in the college. And whatever we can achieve, I can share. And it's all common sense. It's nothing science as a special case into it.
और बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ, आई विल यूज हिंदुस्तानी लैंग्वेज which includes English, Hindi, Punjabi, Urdu, whatever, which is more understandable in this part of the country. That's fine. So I should share my PPT, your entire screen, okay? Share. I don't know how to go about it. Okay. I request Vikas and the other member of the team to help, sir. विकास और गीतू? यस मैम। हाँ सर आपको आई थिंक मुझे लग रहा है नहीं, मुझे लग रहा है सर जो है वो लेफ्ट हो गए हैं, थोड़ा नेटवर्क इशू रहा होगा। लेट मी कॉल हिम फर्स्ट। हेलो हेलो, विकास सर ने ज्वाइन कर लिया है, आप प्लीज जरा उनको हेल्प करें। हेलो सर। डबास सर, यदि आपको कुछ इश्यूज हो रहे हैं पीपीटी शेयर करने में? सर आपका ऑडियो ऑफ है। सर आपका माइक्रोफोन जरा ऑफ है, ऑन कर लीजिए। That's fine. Okay. That's fine. I share the screen. Share the entire screen. Vikas, if I'm not wrong. Yes, no, sir. Actually, it's not. Geetu, is it showing? Yeah, it's showing. And share. Okay. Yes, sir. It's visible to us. Visible to you now. But how to share my PPT? So you can open your PPT. It will be visible to us. No, but I'm not able to find out where the PPT is. Sir, just switch to another app, right? It's showing in your lower tab. Okay. That's fine. That's fine. And now is it showing? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Oh, that's good. That's good. I should go to slideshow. Or that's fine. Is it visible? And am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. See, I had been given on this topic of model of science communication, but the model described in that topic is all related to public understanding of science. इसलिए मैं पहले ही ओपन में ही कहना चाहूँगा, at the outset I should say that I will be talking about models of public understanding of science rather than science communication. Public understanding of science और science communication में क्या रिश्ता है, ये जरा ढूंढ लेते हैं. What is the science communication? Going towards public. We are taking all the science to the public. Is basically science communication. But public understanding of science is to know about the public, to know about how many, what are the part of the public who understand science, और दूसरे लोग नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं. That's more important, because अगर हम कैसे जानते हैं साइंस को, अगर उसको जानेंगे तो we are more closer to the cultural model of public understanding of science, which I will be talking in details.
लेकिन एक और खास बात होती है कि पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इज प्री रिक्विजिट टू साइंस कम्युनिकेशन। अगर आपके पास पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस नहीं है, आप अपनी जनता को नहीं समझते हैं, तो यू आर फेलिंग इन द प्रोसेस ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। आप साइंस कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ होगा कम्युनिकेशन के लिए कि आप बताते चले जाएं कि धरती गोल है, धरती गोल है, और पता नहीं लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए। आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी रीच टू दिस स्टेज कि साइंस कम्युनिकेशन से वी स्टार्टेड विद साइंस कम्युनिकेशन. We still are involved in science communication through like our programs in Eureka, Science Monitor on Rajya Sabha television, which Dr. Sweta told about. लेकिन we came back to public understanding of science. हमें लगा कि साइंस कम्युनिकेशन से ज्यादा जरूरी है पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, और इसीलिए आज हमारे यहाँ नहीं, तकरीबन हर कंट्री में there are associations, there are organizations which are dealing with public understanding of science and putting a good amount of money about public understanding of science. जहाँ वो surveys करते हैं, national surveys करते हैं on regular basis after 2 years. In China it's after 2 years. In other countries it's after 5 years. Though we are not able to conduct even a single national survey in India, but we are very closer to it. So when I'll be talking about cultural model, I'll be putting some historical aspect of it. कि हम कैसे पहुंचे कल्चरल मॉडल तक, ऐसा पहुंचेंगे. साइंस कम्युनिकेशन के मॉडल की बात करें तो लीनियर मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, जिसमें वी हैव साइंस, वी हैव मीडिया एंड वी हैव द रिसेप्टर्स. ये लीनियर मॉडल है. हमारे पास साइंस है, एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास एक मीडियम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, चाहे वो रेडियो है, टेलीविजन है, प्रिंट मीडियम है, व्हाटएवर, एंड वी रीच टू द पब्लिक. और हम वी टेक इट ग्रांटेड कि हमने जो दिया है वो रिसेप्टर्स रिसीविंग एंड पे ले लिया गया है. बट दैट फेल्ड इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट, सो दैट इंटरेक्टिव मॉडल केम इनटू बीइंग. साइंस कम्युनिकेशन के मॉडल की बात करूं तो मैं, तो फिर इंटरेक्टिव मॉडल आ गया. देयर शुड बी सम फीडबैक. एक्सपर्ट्स के साथ फीडबैक जानी चाहिए, सो दैट एक्सपर्ट शुड नो कि रिसीविंग एंड पे इट हैज बीन डाइजेस्टेड और नॉट, व्हाटएवर. इंटरेक्टिव मॉडल में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, उसमें फीडबैक भी आ गए हैं, उसमें नॉइजेस भी आ गए हैं, उसमें इंटरेक्शन भी आ गया है कि जब रिसीविंग एंड पे लोग एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं. So I won't be taking these models basically because this is altogether different set of lecture when we talk about models of science communication. So I'll be talking about those about the world organizations which started with science communication, but now they are into public understanding of science. England में एक है COPUS करके, Committee on Public Understanding of Science, which is part of British Association for Advancement of Science. ये रॉयल सोसाइटी का पार्ट रही हैं, और रॉयल सोसाइटी में पहले साइंस कम्युनिकेशन करती थी, बट दे स्विच्ड ओवर टू पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस. ऐसा ही एक ग्रुप है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. वी हैव वेरी क्लोज एसोसिएशन विद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. मार्टिन बावर इज हेडिंग दैट. ऐसे ही जॉन मिलर, जिन्होंने सबसे पहले इस मॉडर्न वर्ल्ड में साइंटिफिक लिटरेसी के ऊपर सर्वे किए हैं, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस. जॉन मिलर इज अ बिग नेम ऑन साइंटिफिक लिटरेसी, और साइंटिफिक लिटरेसी की जब बात होगी तो वो डेफिसिट मॉडल की तरफ जाएगा. सो विल बी टॉकिंग अबाउट दो द वर्क हैज बीन कैरिड आउट एट अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस बाय जॉन मिलर, बट डेफिसिट मॉडल हैज बीन प्रोपेगेटेड बाय कॉपस. जितने भी साइंस म्यूजियम्स हैं, चाहे वो कोलंबिया में है, चाहे वो लंदन साइंस म्यूजियम है, चाहे वो बुल्गारिया में है, चाहे वो ब्राजील में है, चाहे वो चाइना में है, चाहे वो साउथ अफ्रीका में, दे आर ऑल into science communication. But now this shift is quite evident. People are like switching over from science communication to public understanding of science. और इसी को लेके सबसे पहले रॉयल सोसाइटी की
cooperation से there was one Eurobarometer. It is called Eurobarometer. Barometer means मापदंड किया गया किसी चीज का, और यूरोपियन कंट्रीज का सबसे पहले पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस रॉयल सोसाइटी कोपस की तरफ से यूरोबैरोमीटर की एक रिपोर्ट निकली, जिसमें कहा गया कि इतने लोग यूरोप में साइंस को जानते हैं। और फिर बिकॉज दिस अमेरिका USA was first to conduct scientific literacy survey, तो उन्होंने कहा कि नहीं, we should compare Europe with US. So basically this Eurobarometer report is basically targeted towards US and Europe comparison. इसी तरीके से चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक खास इंस्टीट्यूट है क्रिस्प, चाइनीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पॉपुलराइजेशन, उन्होंने ये काम शुरू किया। इसके देखते देखते क्या हुआ कि थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज स्टार्टेड वर्किंग ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। साउथ अफ्रीका ले लीजिए, वी हैड वेरी क्लोज एसोसिएशन विद साउथ अफ्रीका, विद चाइना। क्रिस्प कास्ट के साथ हमारी बहुत ज्यादा रही है। कास्ट सेंड द डेटा टू एनालाइज ऑन कल्चरल डिस्टेंस मॉडल। साउथ अफ्रीका के साथ हमारे साथ 10 साल का कोलैबोरेशन रहा। इवन ब्राजील, बुल्गारिया, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, कोलंबिया, कनाडा, they even just Asian countries like China, Sri Lanka, they collaborated with us. CSIR, NESTAT, and then NISCARE. NESTAT is National Institute of Science, Technology and Development Studies, and National Institute of Science, Communication and Information Resources. We started with NESTAT and then we shifted to NISCARE. Generally देखें तो इन सब एसोसिएशंस का काम क्या रहा है? What is the aim? Aim is to interpret scientific advances and make them more accessible to the public. That's basically aim of this all these scientific institutions. Whenever this Eurobarometer report came into like publish होके जब सामने आई, तो quickly a model came up, deficit model. Deficit model की अगर मैं एक तस्वीर दिखा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. Then we'll come back to deficit model. Now this is basically Eurobarometer report, जहां से ये ग्राफ लिया गया है. Green says Europe, this the gray shades they say United States. और यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि मोस्ट ऑफ द जो साइंटिफिक फेनोमेना है उसमें यूएस इज हेडिंग अहेड ऑफ यूरोप. क्या इसको जस्टिफाई करना था यूएस ने कि हम ज्यादा साइंटिफिकली लिटरेट हैं? हो सकता है ये बात हो. ये जस्टिफाई करना है कि वी कैन जस्टिफाई आवर साइंटिफिक लाइक प्रोजेक्ट्स, मैनहट्टन प्रोजेक्ट हो या कोई भी न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड कोई, उसको जस्टिफाई कर सकें. तो जस्टिफाई नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने लोग साइंस को जानते हैं, कितने लोग साइंस को नहीं जानते हैं. आई सी about 60% know about how long does it take to Earth to go around the sun? 1 year. तो ग्रीन ने about 58% ने कहा. But what about 42%? इसके आगे जो 42% है, इससे आगे या यूएस का लें तो about 55%. What about the rest 45%? तो इस मॉडल ने कहा कि ये जो 45% बाकी के लोग हैं जिन्होंने साइंटिफिकली करेक्ट आंसर नहीं दिया है, दैट्स डेफिसिट. और इस डेफिसिट को यूटिलाइज किया कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट को जस्टिफाई कर सकें कि साइंस के और ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमें मिलने चाहिए. बिकॉज यूरोप में, यूएस में इतने सब लोग साइंटिफिकली इलिटरेट हैं. दैट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग फॉर अस. Is anybody scientifically illiterate? जब कल्चरल मॉडल की बात करेंगे तो तभी ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने लोग साइंस को जानते हैं. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है.
लोग साइंस को किस तरीके से जानते हैं और आप किस तरीके से क्वेश्चन पुट करते हैं। आप ये कहें कि धरती गोल है या चपटी, और आप ये पूछेंगे धरती का आकार कैसा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, दैट मेक्स डिफरेंट। आप ये पूछें कि दिन रात कैसे बनते हैं, और आप ये पूछें कि सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है या धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो दैट्स अ डिफरेंट नोशन। और फिर आप किस तरीके से पूछें कि दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, फॉल्स, और डोंट नो, और यू कीप द क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आप बताइए ना, अगर ओपन एंडेड रखेंगे तो शेप ऑफ द अर्थ में सिर्फ गोल और चपटी नहीं आएगी, वहां ये भी आएगी हमारी धरती बहुत लंबी है, हमारी धरती बहुत खूबसूरत है, हमारी धरती बहुत अच्छी है, राइट? दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द कल्चर एंड दैट्स नॉट। अगर हम क्वेश्चन को डिफाइन कर देते हैं, किसी को बाउंड्रीज में बांध देते हैं, तो वो शायद हमारे कल्चरली रिच कंट्रीज, जो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स हमें डेवलपिंग कंट्रीज कहता है, वी कॉल देम कल्चरली रिच कंट्रीज, उनके लिए सही नहीं है। ये यूरोप के लिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हो सकता है ये क्वेश्चनेयर हमारे लिए नहीं हो सकता कि धरती के बीच गर्म है या ठंडा। इसका मतलब क्या है? आप बाहर नहीं जा सकते, आप या तो ठंडा कहेंगे या गर्म कहेंगे, आप एक जैसा नहीं कह सकते। That's how you frame your questions. That depends from one culture to another culture. हाँ, अब अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं, तो this deficit model was propagated by Koppers in 1985. हाँ, और questions जैसे मैंने बात की, the center of the earth is what? True, false, or decay, or don't know, whatever. अगर ये पूछा जाए कि अर्थ का सेंटर कैसा है, या तो कुछ इस ऐसा नहीं आएगा, ट्रू, फॉल्स और डोंट नो, ऐसा नहीं होगा। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और हम पूछे कि दिन रात कैसे बनते हैं, तो दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। हम पूछें कि चीजें ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी से नीचे आती हैं या नहीं आती हैं, ट्रू, फॉल्स और डोंट नो, है ना? और हम ये पूछें कि चीज को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आ जाती हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट रिस्पॉन्सेस। जब ये कहेगा कोई कि ऊपर पकड़ने के लिए कुछ नहीं है इसलिए नीचे आ जाती है, राइट? सो आपका फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चनियर is more important, how you access like public understanding. हाँ, अब ये पूछें which is bigger, एटम और इलेक्ट्रॉन। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि एटम और इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, तो हम यही नहीं बता सकते कि क्या बिगर है ना? तो क्या ये पूछा जाएगा व्हाट इज एटम, इज मोर इंपॉर्टेंट। दैट्स द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन कम्स फ्रॉम प्लांट्स, है ना? और वो कहेंगे नहीं, प्लांट से आती है या प्लांट से नहीं आती, या ट्रू है या फॉल्स है। और हम पूछें कि जो ऑक्सीजन हम जिससे ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, वो आती कहाँ से है, तो दैट्स रेस्पॉन्सेज विल बी। और ज्यादातर इसका अटेंशन था टू कंपेयर रिजल्ट्स फ्रॉम यूरोपियन नेशंस एंड विद यूएस। तो यूएस हो सकता है ये भी कहना चाहता हो कि द पीपल इन यूएस दे आर मोर साइंटिफिकली लिटरेट देन in any other country, Europe or whatever. So that's basically gives the idea of deficit model. हाँ, क्या फीचर्स हैं डेफिसिट मॉडल के? सबसे पहला कि इस दुनिया के अंदर सारे लोग साइंस को नहीं जानते हैं, देयर इज सम डेफिसिट। तो ये मान के ही चलते हैं साइंटिस्ट लोग, जो अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, दो दे आर आल्सो लैकिंग इन सो मेनी थिंग्स। हाँ, फिजिसिस्ट को नहीं मालूम होगा कि बायोलॉजी में क्या हो रहा है, तो मे बी डेफिसिट फॉर बायोलॉजी, बट दे डोंट टेक इट एज, दे से दैट नो 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 वी आर साइंटिस्ट वी। सो देयर इज ऑलवेज डेफिसिट में ये है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कम कहा जाता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इंफॉर्मेशन कहाँ जनरेट होती है, साइंटिस्ट जनरेट करते हैं। दिस से कि वी जनरेट इंफॉर्मेशन, दैट्स नॉट ट्रू। इवन पीपल जनरेट इंफॉर्मेशन इवन अबाउट साइंस। चेरनोबिल का इफेक्ट देखना होगा तो तब हम बात करेंगे कि
चेरनोबिल के इफेक्ट को शीप के ऊपर देखना था, तो वहां के शीप फार्मर्स ने बताया कि कैसे करिए, आप साइंटिस्ट को बताया कि आप जो कर रहे हैं उससे डिजायर्ड डाटा नहीं आएगा। हाँ, जब आगे चलेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हाँ, इट इज अच्छा, दो चीजों को, दो ग्रुप को एकदम डिवाइड करता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। एक एक्सपर्ट है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है साइंस की, और दूसरे लेमैन है जिनको साइंस की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो नॉन एक्सपर्ट हैं। एक एक्सपर्ट है, नॉन एक्सपर्ट है, इन दो ग्रुप में डिवाइड कर देता डेफिसिट मॉडल, व्हिच इज अगेन नॉट ट्रू। लैंग्वेज अलग हो सकती है नॉन एक्सपर्ट्स की, और पब्लिक एंगेजमेंट और सिटीजन साइंस की बात करेंगे तो तब हम बात करेंगे कि नॉन एक्सपर्ट्स ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। एंड द साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन स्टार्टेड विद नॉन एक्सपर्ट्स, क्योंकि जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज को देख लीजिए आप, 90% दे आर डन बाय नॉन एक्सपर्ट्स। जिसने फिजिक्स का कोई डिस्कवरी दी है तो ही वाज नॉट अ फिजिसिस्ट, तो उसको नॉन एक्सपर्ट ही कह सकते हैं। बायोलॉजी वाला हो सकता है, या एस्ट्रोनॉमी वाला हो सकता है, या फिलोसोफर हो सकता है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। इवन जब हम एक्सरेज की बात करते हैं, विच इज लाइक डिस्कवर्ड बाय रॉन्टगन, he was not working on x-rays and he was not like targeted to invent x-rays, हैं? और इसलिए let it be x, उसको रेज मालूम नहीं, समझ में नहीं आई कि कौन सी रेज हैं, that's why it becomes x, let it be x, और आज तक x-ray चलती है ना। कोई ये पूछे कि x-rays क्या होती हैं तो nobody can explain x-rays, ठीक है ना। क्यों x-rays कहां से आया नाम, तो let it be x से आया है, क्योंकि वो नॉन एक्सपर्ट ने कहा था, वो ही वाज वर्किंग ऑन कॉस्मिक रेज, रॉन्टगन। तो अरिस्टोटल ने भी कुछ बात बताई होगी, प्लूटो ने भी कोई बात कही होगी, आर्यभट्ट ने भी कोई बात कही होगी, तो दे वर नॉन एक्सपर्ट। उन्होंने कभी एस्ट्रोनॉमी में काम नहीं किया था आर्यभट्ट ने, बट ही वाज हैविंग क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स इट, so that's more important, curiosity is more important। और डेफिसिट मॉडल का एक और जो बहुत ही अब्सर्ड मैं कहूंगा नोशन है, कि वो ये कहते हैं कि एक्सपर्ट शुड कम्युनिकेट टू नॉन एक्सपर्ट एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि साइंस ही है सब कुछ है। ये जो बाकी सब चीजें हैं, दैट्स दे आर सब्सिडरी, साइंस इज मेन, और साइंस की इंफॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंच जाए तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बस इज इट पॉसिबल, सबसे पहले क्वेश्चन ही इसी पे उठेगा कि अभी तक इतने लोग, रुचिराम साहनी 1863 से लेके और 1948 तक जिसने पूरा साइंस कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया, था हमारे समाज के अंदर तो साइंस ही साइंस होनी चाहिए, देयर शुड बी नो लाइक सुपरस्टिशन, नो मिसबिलीफ और व्हाटएवर, बट दे आर ऑन इंक्रीजिंग साइड। आज भी अगर हम बात करेंगे, दो वी कॉइन्ड दिस टर्म साइंटिफिक टेम्पर, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा साइंटिफिक टेम्पर, दिस टर्म वाज गिवन टू द वर्ल्ड बाय इंडिया, साइंटिफिक टेम्पर। Science is a way of life. It's not science as a subject. सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, पहली बात है। सब कुछ पढ़ाने से, साइंस पढ़ाने से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो कुछ और इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ दिस डेफिसिट मॉडल। बस डेफिसिट है। रेशनल भी कुछ ऐसी बात करता है कि पब्लिक में अनसर्टेनिटी है, पब्लिक में डाउट्स हैं, मॉडर्न साइंस को नहीं समझता, वो एनवायरमेंटल इश्यूज को नहीं समझता है, तो कोई एक्सपर्ट आए जो उसको मॉडर्न साइंस, एनवायरमेंटल इश्यूज है ना, इसके बारे में सफिशिएंट नॉलेज नहीं है लोगों के पास, तो कुछ सफिशिएंट नॉलेज दे देनी चाहिए। दैट्स व्हाई कि सब लोगों को जो हम बताएंगे वो सब ठीक है। ठीक है का मतलब कुछ और भी निकलेगा, विच इज टू डेंजरस फॉर साइंस, कि जो हमने बताया वो ठीक है, राइट। कोई ये नहीं बताएगा कि आज तक ठीक है। साइंस इज डायनेमिक, हर रोज चेंज होती है,
जो साइंस का एटम का मॉडल थॉमसन ने दिया था वो बोर ने नहीं दिया था। हाँ, ऑर्बिटल थियरी, ऑर्बिट थियरी और उससे पहले नॉन ऑर्बिट थियरी वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ? तो इट्स डायनेमिक, वो चेंज होता है। जो आज है वो आज ही ठीक है आज के लिए, कल चेंज हो सकता है साइंस में। तो डायनेमिज्म को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया इन्होंने। जब ये नॉलेज डेफिसिट की बात करते हैं तो नॉलेज डेफिसिट इज टोटली डिफरेंट। नॉलेज की जैसे बात करें तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स साइंटिफिक टेम्पर रादर देन साइंटिफिक लिटरेसी, दैट इज लिटरेसी डेफिसिट। नॉलेज डेफिसिट नहीं हो सकता। मेरी इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी हो सकती है, आई मे नॉट बी नोइंग दैट और नॉट, मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं उस फिनोमेना को जानता हूं, बट माई इंटरप्रिटेशन कैन बी ऑल राइट है। एक एग्जांपल दूंगा मैं जब कल्चरल मॉडल या कुंभ के मेले की बात करेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड नॉलेज? और वो बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल है जो मेरे सारे स्टूडेंट्स जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं, दे कैन फील इट, बट उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा। जब एक गवाला कोई बात कहे जो इनका हर्ड्स लेके जाता है जानवरों के, कि चलो पास्चर्स में इनको सब घुमाने के लिए लेके जाते हैं, ही वाज टॉकिंग अबाउट साइंस, and how he is talking about science is different. That's basically knowledge based, not literacy based. So सारे संसार को एक्यूरेट, रिलायबल, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, सब कुछ ऐसा कर देना is basically behind all this deficit model. कुछ एसेंशियल्स थे। ये एसेंशियल है सबसे पहले कि जनरल पब्लिक डज नॉट अंडरस्टैंड साइंस है, और दूसरा एसेंशियल है कि दे शुड बी एजुकेटेड। फार्मर नोट साइंस और नॉट, पता नहीं मेरे स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं कि नहीं जानते, जो भी यहाँ बैठे हैं। डू यू बिलीव कि जनरल पब्लिक है वो साइंस को बिल्कुल नहीं जानती? क्या किसी फार्मर को एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाने की जरूरत है? वो ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ, ये बता देते हैं कि आज बरसात आएगी कि नहीं आएगी। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं। उनकी लैंग्वेज कुछ अलग होती है। उनको ये पूछिए कि आप खाद क्यों डालते हैं, वो ये नहीं कहते कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट्स को, नहीं, वो ये कहते हैं कि धरती की ताकत खत्म हो जाती है जब बार बार कोई फसल उगाते हैं, है ना। वो ये नहीं जानते नोडुलेटेड रूट्स क्या होती हैं, क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं, बट वो ये जानते हैं कि सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स को बोने से ही आप ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं, या क्रॉप रोटेशन इसलिए करते हैं कि एक फसल को एक खास न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। वो न्यूट्रिएंट नहीं समझते, वो ग्रीन मैन्योरिंग नहीं समझते, वो नोडुलेटेड रूट्स नहीं समझते, वो राइजोबियम नहीं जानते, लेकिन वो ये जानते हैं कि जिस पौधे की जड़ों में गांठें होती हैं सिर्फ वो बोने से ग्रीन मैन्योरिंग होगा। वो जानते हैं ये बात, और उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरा एक और भी बात है, किसी को ये कहो कि यार, किसी फार्मर्स को ये कहो कि चलो किसान भाइयों आज आपको ये बताते हैं धरती गोल है, तो वो ये कहेगा, मतलब हमारा एक्सपीरियंस ये था जब हम मंडी में ऐसा कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, वो कहते नहीं ये मत बताइए, ये सब हमें मालूम है ना। हालांकि उनको कभी स्कूल नहीं गए, उनको नहीं मालूम होगा। इवन अंडरस्टैंडिंग और लिटरेसी में ये फर्क है कि मुझे मालूम है कि धरती गोल है, लेकिन मैंने कभी प्रूव नहीं किया कि धरती गोल है। ये बात पक्की है। जो साइंस के सारे लोग ये कहते हैं कि धरती गोल है, या स्फीयर है, whatever they call it, but they have not proved it, है ना। वो कुछ जब एग्जाम्पल देते हैं तो वो कह देते हैं कि ऐसा होता है इसलिए गोल है, ऐसा होता है इसलिए गोल है। अज्यूम्ड, और ये भी जंक्शन है एक डेफिसिट मॉडल की, कि हमारे पास नॉलेज है, ये नॉलेज पहुंचाएंगे सब कुछ फिक्स हो जाएगा, है ना। एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए साइंस की और वो सब कुछ फिक्स हो जाएगा, राइट। इट इज ऑल्सो assumed that public will digest all the information prior to, ये भी गारंटेड है
जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो दिया जाता है ना वो पब्लिक ले लेगी, बिकॉज वो नॉन एक्सपर्ट हैं, हमारे तरीके से एक्सपर्ट नहीं है। और फिर जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी हम जब पब्लिक उसको हैप्पीली सपोर्ट करेगी। बट डिड इट हैपन विद बीटी कॉटन? नो, it didn't happen. Did it happen to CRISPR gene editing technology? No. Ethical committees बनानी पड़ी हैं हमें, हैं? जिसने ये कहा कि मैं चाइना में जिस साइंटिस्ट ने ये कहा कि मैं ऐसे ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस कर सकता हूं दोज हु विल बी HIV रेजिस्टेंट, उनको कभी HIV होगा ही नहीं, राइट? उसकी लैब को बंद कर दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि दैट वाज अगेंस्ट द एथिक्स। या यूएस वाले वो चाहते हैं कि हम पहले करना चाहते थे, तुमने क्यों कर दिया, ये तो हमें करना चाहिए था। तो दैट्स तो ऑल डिफरेंट what are the limitations when we say this public is dumb about science, it does not understand science, is the limitations. No, it's not true. And deficit can be fixed by giving the information by expert. No, absolutely no. अगर ये होता तो आज से 200 साल पहले से साइंस कम्युनिकेशन हो रहा है, अभी तक तो फिक्स हो जानी चाहिए सारी प्रॉब्लम्स, राइट? और पब्लिक इज रिसीवर, ओनली रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन इज अगेन द लिमिटेशंस. नो, एक्चुअल इंफॉर्मेशन जनरेट ही पब्लिक से होती है. इवन साइंटिस्ट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक. साइंटिस्ट बाद में होता है, पहले वो पब्लिक का पार्ट ज्यादा होता है. और ये भी एक जगह है, साइंस इज नॉट डायनेमिक. इट इज ऑल्सो assumed that scientific facts are unlikely to change. इसलिए मैंने बता दिया तो आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए, और मैंने बता दिया, that's all. So इसके बाद एक छोटा सा फेज आया जब था लॉ इंफॉर्मेशन रेशनैलिटी, कि जितनी जरूरत है उतनी इंफॉर्मेशन की रेशनैलिटी को हम इस्तेमाल करें और उसको इस्तेमाल करें. दैट वाज शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम था वो, है ना. वो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर हैं पब्लिक, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक यूज के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो उसका यूज भी बड़ा स्पेसिफिक है, टाइम भी बहुत स्पेसिफिक है. तो इस तरीके से एक छोटा सा फेस आया था. बट शॉर्टकट मेथड अपनाती है पब्लिक ना, वो क्विकली चाहती है हर चीज का जो सॉल्यूशन है शॉर्ट टर्म में सब कुछ हो जाए. तो बट दिस इज लिमिटेड टू लाइक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के लिए को एक्सप्लेन करता है. दैट्स नॉट सो दैट इसको किसी भी प्लेटफॉर्म ने आगे परसू नहीं किया लो इंफॉर्मेशन रेशनैलिटी का. एंड देन दिस इज बेसिकली इंडियाज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक एंड सो डेफिसिट मॉडल की लिमिटेशंस फीचर्स के बाद हम दूसरे कल्चरल डिस्टेंस मॉडल की बात करें, which is contribution of India towards the public understanding of science. But I'll go towards the historical aspect of it. मैं बता देता हूँ, कुछ आधारभूत बातें करेंगे, so that we reach to the conclusion about to this cultural distance model. Because I was involved with this cultural distance model, that's why I'm sharing these two experiences which I encountered. 1986 में the Department of Science and Technology के अंदर एक है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो साइंस एंड कम्युनिकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी को, अच्छा साइंस और टेक्नोलॉजी, अब मैं बता दूं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दोनों को जब हम कम्युनिकेशन, साइंस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जेनरिक टर्म साइंस से इस्तेमाल करते हैं, बट वी मीन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों है. और मेजर डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज, साइंस इज बेसिकली नेचुरल फिनोमेना एंड यूज ऑफ इट इज टेक्नोलॉजी बेसिकली. बट जेनरिक टर्म हम साइंस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सब चीजें इस्तेमाल करते हैं. NCSTC ने 1986 में कहा कि वी शुड हैव वन minimum science and technology package for everyone. ये एक कॉल थी 1986 में.
जब ये बात द रिसर्च ग्रुप working in at NIST at that point of time, we got this information like minimum science and technology package for everybody, because we were working in close association with NCSTC. So we raised like two basic questions. Is there any minimum in science which can be fixed at any point of time? क्या हम कोई minimum fix कर सकते हैं कि ये मिनिमम है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहूं या साइंस कहूं, तो जेनरिक टर्म में साइंस कहूं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मिनिमम है? और क्या मैं ये कह सकता हूं कि एवरीवन, हु इज एवरीवन? दिस नोशन ऑफ एवरीवन इज अ बिग क्वेश्चन. क्या मिनिमम साइंस जो एवरीवन में डॉक्टर भी आएंगे, साइंटिस्ट भी आएंगे, इंजीनियर भी आएंगे, स्टूडेंट्स भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, बूढ़े भी आएंगे, फार्मर्स भी आएंगे, लेबर भी आएगा, सब कुछ आएगा क्या? विच इज मिनिमम? It means whatever is minimum to a labor must be minimum to doctor. Is it true? Or everyone is homogeneous group? मैं ये कहता हूँ आज जितने स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, this not everyone or not a homogeneous group. कुछ साइंस के होंगे, साइंस बैकग्राउंड से होंगे, कुछ आर्ट्स के होंगे. इवन आर्ट्स बैकग्राउंड से भी जो बच्चे हैं, दे आर नॉट ए होमोजेनियस ग्रुप. किसी कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, किसी सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके घर पे क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज है, एक्सेस क्या क्या है, इंफॉर्मेशन की एक्सेस क्या क्या है. हाँ, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है तो आई डोंट हैव एक्सेस टू कंप्यूटर्स. मेरे पास टेलीविजन नहीं है. मेरे साथ पढ़ने वाले के पास बहुत सारी एक्सेसेस हैं, वो न्यूज़पेपर भी मंगाते हैं, टेलीविजन भी देखते हैं, कंप्यूटर भी देखते हैं, सोशल मीडिया भी देखते हैं. दे हैव मोर एक्सेस. So that you can't define everyone as a homogeneous group. It means everyone is having so many subsets. बहुत सारे subsets हैं उसके. इसलिए the two major question, minimum science के भी दो नोशन हैं कि हर सबसेट के लिए मिनिमम अलग अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आज जो मिनिमम है वो कल भी मिनिमम होगा क्या, है ना? अगर ऐसी बात होगी तो हम न्यूटन से पहले की जो साइंस है वहां से शुरुआत करेंगे हमेशा. बट हम कब बात करते हैं, जो पहले वाले लोग थे उन्होंने न्यूटन को कुछ सिखाया, न्यूटन ने आगे कुछ सिखाया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिखाया, स्टीफन हॉकिंग ने सिखाया. तो वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट. तो आगे वाली जनरेशन आज के प्लेटफॉर्म से शुरू होगी. आज जितना हो चुका है वो मिनिमम होगा उसके लिए, जो कि न्यूटन के लिए नहीं था उतना मिनिमम. तो मिनिमम इज ऑलवेज चेंजिंग, एंड मिनिमम इज ऑल्सो चेंजिंग फ्रॉम सबसेट टू सबसेट, एंड एवरीवन इज नॉट ए होमोजेनियस ग्रुप. ये 3-4 क्वेश्चंस थे इस मिनिमम एसएनटी पैकेज के ऊपर. So that failed. Or second was, because I was also part of this Bharat Jan Vigyan Jatha 1987, we were like taking science to, basically this is a campaign taking science to the public. 5 jathas, they started from 5 corners of the country and they culminated at Bhopal after traveling throughout the country for 1.5 months. एक वाकया हुआ हमारे साथ भारत जन विज्ञान जाथा में. वी वर हैविंग वन सेमिनार विद द फार्मर्स, स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर ऑन एस्ट्रोनॉमी. तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे मैंने जिक्र भी किया था, कि जब ये बताया गया कि धरती गोल है, तो एवरीवन सेड, ओह वी नो इट, डोंट टेल अस, टेल समथिंग एल्स टू दिस पब्लिक. और जब इवोल्यूशन की बात की तो उन्होंने कहा हमें चाहिए नहीं है, तो वी डोंट नीड इट. तो जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के बारे में ये भी जानना है कि किस पब्लिक को क्या चाहिए. तो दैट्स वाज आई ओपनर टू अस कि भाई हम जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं या जिनके पास इंफॉर्मेशन है, इसलिए तो फेल होते हैं कि उनको चाहिए नहीं जिनको हम दे जा रहे हैं. So
we learned some lessons. And then we started working on public understanding of science, and we started with the Kumbh Mela, 1989. 1989 में सबसे पहले कुछ एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया जो भारत जन विज्ञान जत्था में थे कि we should develop one questionnaire which is like appropriate to our culture, and then we'll survey some people. And when we were going to this Kumbh Mela, we were told by the experts that don't go there, that's a religious conglomeration. वहाँ religious लोग जाते हैं, वहाँ science ढूंढने के लिए मत जाइए. But our all notions, they were flattened by the responses of the public who attended Kumbh Mela. और वो ऐसी साइंस जानते हैं जो एक एक्सपर्ट्स ने कभी नहीं जानी होगी, राइट? 1989 में चले तो वी थॉट दैट वी शुड हैव, लाइक 1995 में भी देखते हैं अर्थ कुंभ मेला लगता है, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. 1989, 95, 2001, 7, 1913 सब में करा. ऐसे ही सोचा कि चलो हम वहाँ करके आए थे, एक मंगोलपुरी में करते हैं, ऑलमोस्ट रिसेटलमेंट कॉलोनी इन दिल्ली, कि वहाँ कुछ करते हैं. प्लेग से रिलेटेड किया, यूनिसेफ ने किया, नेपाल ने हमें इनवाइट किया कि कम एंड हैव वन सर्वे इन नेपाल. MHRD ने कहा कुछ एजुकेशन पे कीजिए, HIV एड्स के ऊपर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है नाको हमारे देश के अंदर, वहाँ नेशनल सर्वे किया करीब 25,000 लोगों का. देन वी हैड अ वेरी लॉन्ग एसोसिएशन विद साउथ अफ्रीका एंड वी डिड वन इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम IKS, और वहाँ पॉटर्स के ऊपर काम किया, जहाँ पॉटर्स ने बताया कि हमें टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगाने की जरूरत नहीं है, कि हमारा जब पॉट पकता है भट्टी के अंदर तो भट्टी का टेम्परेचर कैसे पता लगे कि इस पॉट के लिए सिर्फ इतनी आग चाहिए. तो उसने कहा कि हम आग की जो कलर है ना उसको देख के बता देते हैं कि टेम्परेचर इतना हो गया. सो दैट्स ऑल इंडिजिनस नॉलेज. सो दैट वाज लाइक सर्वे. देन methodology थी कि we conducted large scale survey studies. Survey were based on face to face interview. जो questionnaire बनाया, questionnaire open ended questionnaire was used. वहाँ ये नहीं पूछा गया कि धरती का बीच गोल गर्म है या ठंडा, राइट? ओके. हाँ, कुछ ग्रुप डिस्कशंस भी ऑर्गेनाइज किए गए. देन वी एनालाइज सम डाटा, SPSS में डाटा बेस बनाए गए और डाटा को एनालाइज किया गया. इससे रिलेटेड अगर मैं कुछ वो बात करें कि इसके मेजर कंक्लूजन क्या है, विच लेड अस टू फ्रेम कल्चरल डिस्टेंस मॉडल. सबसे पहला कंक्लूजन था पब्लिक इज नॉट डम. उनकी अपनी भाषा होती है, वो साइंस को जानते हैं, और जहां वो कहते हैं कि नहीं पता में भी बहुत सारी चीजें हैं. इफ वी कुड रिकॉर्ड देयर फेस एक्सप्रेशन, ये कहना कि मुझे नहीं मालूम और ये कहना कि जाओ बेकार की बातें पूछते हो, मुझे नहीं मालूम, इन दोनों नहीं जानने में भी फर्क है. which we couldn't record, we could only record with like group discussions में हम कर पाए थे. अब मैं लैंग्वेज की बात करूं तो मैं लैंग्वेज की बात बता देता हूं. आज this is right platform to talk about that experience we had during Kumbh Mela. 1995 की बात है जब हम कुंभ मेला में we met. मैंने पहले जिक्र किया था कि मैं बताऊंगा कि क्या उनकी लैंग्वेज है and how they understand. They are not scientifically literate, but they understand science. How they understand. See, we came across one shepherd. The boy was about 21, 22 years old, and he was taking all those these herds to the pastures. वो सुबह लेके जाता था जानवरों को, शाम को लेके आता था. हमने पूछा कि ये बताइए कि ये ग्रहण कैसे लगते हैं. तो what he told, it's very interesting. मैं कल्चरल डिस्टेंस मॉडल का बेस है तो ये एग्जांपल्स हैं. उसने कहा कि देखिए दो बातें हैं, मैं एक बात जानता हूँ, एक बात मानता हूँ, है ना. मैं जानता हूँ, मेरे बुजुर्गों ने बताया कि ग्रहण लगते हैं राहु केतु से, जो दोनों डैमन हैं, दोनों हैं, और वो एक सूरज को खा लेता है तो सूरज ग्रहण लग जाता है, एक चांद को खा लेता है तो चंद्र ग्रहण लगता है.
बट मैं मानता नहीं हूं इस बात को। So why so? He said कि अगर ये दोनों राक्षस हैं जो चांद और सूरज को खाते हैं, अगर ऐसा है तो अर्थ के ऊपर कोई साइंटिस्ट ये नहीं बता सकता नेक्स्ट इक्लिप्स कब लगेगा, क्योंकि राक्षस है, उसकी जब मर्जी खाए जब मर्जी ना खाए। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस नोशन, राहु केतु नोशन। ऐसा ही हुआ कि भाई आदमी कहाँ से आया, तो उसने कहा मैं बताऊं, मैंने सुना तो है आदमी बंदर से आया, लेकिन मैं आई डोंट एग्री टू दिस, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस धरती के ऊपर एक भी बंदर नहीं होना चाहिए, सारे बंदर आदमी हो जाने चाहिए। इन दो क्वेश्चंस के आंसर ने हमें हिला दिया, जो हम बोलते थे ना कि हम साइंस कम्युनिकेशन करने आए हैं, हम साइंस को जानते हैं। ऑन दैट डे आई कुड अंडरस्टैंड कि मैंने डार्विन को पढ़ा है, मैंने डार्विन को समझा नहीं है। डार्विन को समझा उसने था, शेफर्ड ने, जिसने ये कहा कि अगर आदमी बंदर से बना होता, इवन डार्विन नेवर मेंशन्ड इन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कि आदमी बंदर से बना है। ही मेंशन्ड दैट द मैन एंड द एप, जो बंदर हैं और आदमी हैं उनके एंसेस्टर्स एक हैं। It has got mentioned origin of species में। He never said that आदमी बंदर से बना, though he was titled as monkey man, वो एक अलग बात है ना। तो ये है पब्लिक की साइंस और ये है पब्लिक की लैंग्वेज, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द साइंटिफिक लैंग्वेज, बिल्कुल अलग है। वो डार्विन की बात करते हैं, वो नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। हाँ, he was not talking about it, simply placed facts कि अगर आदमी बंदर से बना होता तो बंदर होने नहीं चाहिए ना, सारे आदमी बंदर ट्रांसफॉर्म हो जाने चाहिए थे अभी तक। बंदर भी है, आदमी भी है धरती के ऊपर, तो समथिंग रॉन्ग विद इट, आदमी बंदर से बना ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, राइट। I'll keep on going, but if anyone has some queries, yes, he or she can raise hands and talk about it. No issue on it. उनकी अपने ही अंदर अंडरस्टैंडिंग की अपनी ही रैशनैलिटी है। जरूरी नहीं है कि वो साइंस की लैंग्वेज जानते हों लोग, बट उनको डम नहीं कहा जा सकता कि दे डोंट अंडरस्टैंड। देयर इज नो डेफिसिट अबाउट इट। हाँ, डेफिसिट गैप हो सकता है, डेफिसिट नहीं हो सकता। दूसरी और बहुत सारी चीजें हैं कि जितना डिफिकल्ट फिनोमेना होता है उसकी नॉलेज कम होती चली जाती है। अगर आप साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं तो वी हैव एनफ नॉलेज इन द पब्लिक, बट इफ अ मोर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज देन इट्स। इसी तरीके से बात करें कि शेप ऑफ द अर्थ और the atom का स्ट्रक्चर, the atom का स्ट्रक्चर इज मोर एब्स्ट्रैक्ट। तो लोग जानते हैं कि धरती स्फीयर है, लेकिन ये नहीं जानते कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ लोगों को एजुकेट कर लीजिए तो साइंस का एजुकेशन हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। नो, इट्स नॉट। देयर इज जेंडर बायस। जेंडर बायस है। कुछ एरियाज हैं जिसमें women they fare well, but there are some like health areas hai, because onus of the family health lies with the women. So बच्चों की बीमारियों के बारे में ज़्यादा women जानती हैं, men नहीं जानते हैं। और एक जो खास बात थी जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने कही वो ये है कि अगर मैं भी हूँ तो मेरे अंदर साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक स्ट्रक्चर हैं थॉट मेरे अंदर ही। सपोज देयर आर सम सेरेमनी, मैं एग्जांपल देके बता सकता हूँ। आई एम वेरी साइंटिफिक। जब किसी सेरेमनी में मुझे क्या क्या डिशेज बनवानी है, आई एम मोर साइंटिफिक। लेकिन जब मंत्र पढ़ने की बात आती है मुझे नहीं आता है, सो आई एम नॉन साइंटिफिक, इरेशनल। वहां तो जो पंडित जी कह देंगे वो सब मान लिया जाएगा। इवन दो जो मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं उसको पंडित जी भी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं उनके मीनिंग को, ये अलग बात है। लेकिन मेरे लिए डिफिकल्ट है कि मैं वो पढ़ भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू रीड संस्कृत।
And he has all the practice of chanting all those mantras, though he doesn't understand what is the meaning of this mantra. हाँ, लेकिन ये को एक्जिस्ट करते हैं. मैं एक ही टाइम पे बहुत ही साइंटिफिक हूं और उसी टाइम पे बहुत ही इरेशनल हूं. ये को एक्जिस्टेंस इज बेसिकली डिफाइंस द कल्चर. और इन सब कंक्लूजन्स को लेके देन एक और भी बात कही गई कि सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं था ये इस मेथोडोलॉजी का जो हमने वो किया कि सिर्फ कितने लोग साइंस जानते हैं ऐसा नहीं. हमने ये भी बताया कि लोग साइंस को किस तरीके से जानते हैं. दैट्स व्हाई जितने भी रेस्पॉन्सेज आए किसी भी साइंटिफिक फिनोमेना के, हमने उनको 4 भागों में बांटा. साइंटिफिकली करेक्ट मीन्स आज के टाइम पे जो साइंस से कंफर्म करता है रिस्पॉन्स, उसको हमने साइंटिफिकली करेक्ट में डाला. साइंटिफिकली इनकरेक्ट जो कंफर्म नहीं करता है, राइट. फिर किसी ने कहा ये तो भगवान की माया है, तो दैट्स नाइदर साइंटिफिकली करेक्ट नॉर साइंटिफिकली इनकरेक्ट. दैट्स बेसिकली एक्स्ट्रा साइंटिफिक. Whenever there is some call for supernatural power, so that's called extra scientific. Gap of knowledge को हमने don't know कहा. तो वो जो स्केल था डेफिसिट मॉडल में कि कितने लोग जानते हैं कितने लोग नहीं जानते हैं, उस 2 की बजाय हमने 4 में डिवाइड कर दिया उसका. एंड दिस कोडिफिकेशन वाज डन आउट ऑफ लाइक दिन रात कैसे बनते हैं उसके भी करीब 50-60 रेस्पॉन्सेज थे. सो ऑल वर क्लब्ड into these 4 categories. Okay? फिर हमें एक और भी बात थी कि ये होता क्या है पब्लिक में कि एक आध क्वेश्चन के बारे में तो लोग बहुत अच्छा जवाब देते हैं, दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं. What is this? So there is something like there are so many factors about it. So we'll talk about those factors, right? So this is the model, what we call cultural distance model. We call, like this was given by Gauhar Raza and me as Tabaz, 1997 mein. We call that there is some public culture, okay, and there is some science culture. Public ka culture hai, public ki language, public ka setup is totally different from scientific culture. साइंस की लैंग्वेज अलग है, साइंस का सेटअप अलग है, वो लैबोरेटरीज में किया जाता है. पब्लिक सोसाइटी को ही अपनी लैबोरेटरी मानती है. इनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है, साइंस की लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है, राइट. सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कल्चर एंड साइंस कल्चर. और इनके बीच में डिस्टेंस है, देयर इज सम डिस्टेंस. ओके, सो देयर इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 कल्चर्स. हाँ, but there are some factors, there are some intrinsic factor, intrinsic to scientific knowledge. अगर हमें scientifically literate करना है, scientifical public की understanding को बढ़ाना है, तो there are some extrinsic factors जो science culture से बाहर होते हैं. There are some intrinsic factors जो within science के within होते हैं. Extrinsic cultures जो science के बाहर की बातें हैं, जो public का हिस्सा होते हैं. So these are 2 factors which determine this distance between public and the science. Okay? So what are those factors? अगर हम देखें, पहले इसकी definition को देख लेते हैं. We define cultural distance as distance that a scientific or any worldview, not scientific, science को भी भूल जाइए आप. Any worldview or attitude or perception or any idea, whatever you take. Even political idea, even economic idea, not about scientific. But since we have been talking about science communication and public understanding of science, that's why I have taken this scientific. So generated within one culture, एक culture में जो generate होता है, that travels on a time scale, एक time scale के ऊपर travel करता है for its democratization within the thought structure of another culture. I'll talk about democratization. That's why I have highlighted it. उससे पहले हम कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं. एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कुछ बात कही थी, which are related to public. Age is a big extrinsic factor which determines
बहुत छोटी एज है, बहुत बड़ी एज है, तो दैट हिंडर्स इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, ट्रैवल को हिंडर करता है। यंगर जनरेशन, they take little time to shift from one culture to another, or to understand one cultural idea, or accommodating one cultural idea into another cultural ideas. Okay, education is another factor, but it's not the only factor. नहीं कहा कि सबको एजुकेट कर दिया जाएगा तो सब साइंटिफिकली एजुकेट हो जाएंगे, नो, दैट्स नॉट ट्रू, है ना। ऐसा कुछ होता तो जितने भी लोग साइंस पढ़े हैं या एजुकेट हुए हैं, या जो एजुकेटेड सोसाइटी है, यूरोप है, ये सब, वहाँ तो कुछ सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, बट इट्स नॉट दैट। इवन जेंडर, इवन ऑक्यूपेशन, जोग्राफिकल लोकेशन। और जोग्राफिकल लोकेशन में बता देता हूँ कि केरल का आदमी, उसके लिए फैक्टर्स जोग्राफिकल लोकेशन के बिल्कुल डिटरमिन अलग करेंगे, जो राजस्थान में रहता हो या नॉर्थ ईस्ट में रहता हो या कुछ। इवन एक्सेस टू मीडिया, तो मीडिया के कौन कौन से चैनल को एक्सेस करते हैं, दैट डिटरमिन्स दिस एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन्स पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। देन इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एंड देयर कैन बी मेनी मोर। यू कैन एनलार्ज दिस लिस्ट फॉर अस। आने वाली जनरेशन यही काम करेगी कि जो हमने अधूरा छोड़ा है उसको पूरा करेंगे। There are some intrinsic factors which are very important. They are very intrinsic to scientific factors, scientific culture, abstraction level of scientific. कोई scientific fact है, scientific process है, scientific theory है। scientific fact को कम टाइम लगेगा एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाने के लिए, that's fact. प्रोसेस है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, थियोरी है तो उसको और ज्यादा टाइम लगेगा। शेप ऑफ द अर्थ इज ए फैक्ट, बहुत जल्दी होता है, इसलिए 90% लोग, 80% लोग, 90% लोग जानते हैं कि धरती गोल है, स्फीयर है, लेकिन दिन रात क्यों बनते हैं, इक्लिप्स कैसे लगते हैं, गैलेक्सी क्या होती है, ये सब जानने में थोड़ा सा, इवन दिस इवोल्यूशन थियरी, दैट्स टेक्स लॉन्गर टाइम टू बिकम पार्ट ऑफ अनदर कल्चर। तो एब्स्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट होता जाएगा कोई भी फिनोमेना, तो उसका अंडरस्टैंडिंग कम होती जाती है। कोई भी फिनोमेना लाइफ को कितना इफेक्ट करता है, ना, वो डिटरमिन करता है कि उसका अगर ज्यादा इफेक्ट करता है, जैसे हेल्थ है, हेल्थ इज बेसिकली सर्वाइवल। अगर हेल्थ ठीक नहीं रखेंगे तो, इसलिए हमें कोरोना की दवाई का नाम, कोरोना के वायरस का नाम, सब चीजें मालूम है। हमें शायद कोल्ड के वायरस का नाम नहीं मालूम, हमें HIV एड्स का नाम मालूम है, बिकॉज HIV एड्स इज ए फैटल वायरस, तो वो इफेक्ट बहुत करता है लाइफ को। कोल्ड का वायरस जान नहीं लेता है, इसलिए उसका नाम नहीं मालूम है, इसलिए उसका नॉलेज कम है। HIV एड्स के बारे में ज्यादा नॉलेज है, इवन कोरोना के नाम की ज्यादा नॉलेज है हमें। एंड कंट्रोल ओवर फिनोमेना, अगर कोई मान लो हमें इफेक्ट भी करती है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बाढ़ है, फेमिन है, फ्लड है, दे टेक अवे लाइफ, बट वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट। लेकिन लाइटनिंग है, ऊपर से बिजली गिरती है तो वी लाइट अरेस्टर्स, जो लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाते थे हम ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर ना, जो उसको अर्थ कर देती है, उसको कंट्रोल करते हैं। तो लाइटनिंग के बारे में ज्यादा लोगों को पता है, रादर देन फ्लड एंड फिनोमेना, दिस फ्लड एंड फेमिन, है ना। एक और है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल दो तरीके की होती है। एक तो लाइफ साइकिल है कि वो फिनोमेना कितनी देर बाद आता है, दिन रात रोज बनते हैं, वी नो मोर अबाउट इट। हैलिज कॉमेट बहुत सालों में आता है, 76 ईयर्स में आता है। तो हैलिज कॉमेट जब आता है तो हमें हैलिज कॉमेट के बारे में ज्यादा मालूम होता है, बट व्हेन देयर इज नो हैलिज कॉमेट, आज की जनरेशन को पता नहीं हैलिज कॉमेट के बारे में पता है कि नहीं पता। लेकिन जब 1980s में हैलिज कॉमेट वाज वेरी क्लोज टू सोलर सिस्टम, सो पीपल गैदर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। इसी तरीके से टोटल सोलर एक्लिप्स है,
जब होता है तो सब लोग नीम का थाना चले जाते हैं राजस्थान में, क्योंकि वहां से कंप्लीट सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है। वी गैदर मोर इंफॉर्मेशन। एक ऐसा भी होता है, दिस फिनोमेना ऑफ इवोल्यूशन इज टेक्स ईयर, 1000 मिलियंस ईयर्स, है ना। नॉन लिविंग चीजों से लिविंग बनी है, प्लांट से एनिमल्स बने हैं, एनिमल्स एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज पार्ट ऑफ इवोल्यूशन दैट टेक्स लॉन्गर ईयर्स। सो इसको समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लाइफ साइकिल्स, these again 4 are intrinsic factor, they are intrinsic to scientific phenomena। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें कल्चरल डिस्टेंस बताया है। इसलिए हमने कहा कि इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर डिटरमिन्स दिस कल्चरल डिस्टेंस व्हिच इज पब्लिक एंड द साइंस कल्चर। अगर हम फैक्टर कल्चरल डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली, है ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम डिस्टेंस क्या है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी है, कैन वी मेजर इट, कैन वी मैप इट, क्या हम नाप सकते हैं क्या कि कितना डिस्टेंस है, किसी फिनोमेना का डिस्टेंस कितना है। हाँ, इसका एक बहुत ही कॉमन सेंस अप्रोच लिया हमने, वी कुड मैप इट। And now we can proudly say that we have mapped public understanding of science of more than 5 countries on this scale। इसी स्केल के ऊपर हमने करीब चाइना का, साउथ अफ्रीका का, श्रीलंका का, ब्राजील का, इन सब का डेटा, they sent data to us and they said that measure it on your cultural distance model scale। उन्होंने कहा कि आप नापिए, और वी एनालाइज दिस, वी पब्लिश पेपर अबाउट इट। इस वेरी कॉमन सेंस अप्रोच है, वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है, मैं बता देता हूं, और बट इट्स वेरी, इट्स टुवर्ड्स एप्रोप्रिएटनेस। बहुत ही ह्यूरिस्टिक अप्रोच लिया हमने, वो कॉमन सेंस। हमने क्या किया, आई टोल्ड यू दैट वी सेग्रीगेटेड ऑल द रिस्पॉन्सेज इनटू 4 कैटेगरीज, साइंटिफिकली करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्स्ट्रा साइंटिफिक एंड आई डोंट नो। अब आप देखिए, साइंटिफिकली करेक्ट को छोड़ के बाकी सब चीजें अगर हम क्लब कर दें तो दे आर बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज से दूसरी तरफ है। तो वी क्लब्ड ऑल द 3 टुगेदर और बाइवेरिएट फॉर्मेट बना दिया उसको, करेक्ट एंड इनकरेक्ट व्हाटएवर, ओके। और नापने के लिए हमने एजुकेशन की स्केल को लिया, बिकॉज एजुकेशन वाज कलेक्टेड एज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। कोई 5वीं में पढ़ा है तो 5 किया, कोई मिडिल तक पढ़ा है तो 8 किया, कोई 12th तक पढ़ा है तो 12th, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी 12th किया, ग्रेजुएशन है तो 15th लिया, और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो 17 लिया, और पीएचडी किया है तो 20 लिया, और इसको एक कंटिन्यूअस स्केल बनाया। एंड एजुकेशन इज नॉट एजुकेशन, उसमें एज फैक्टर भी था जो हमने सेग्रीगेट नहीं किया। सो एजुकेशन स्केल है बट नॉट एजुकेशन, इट्स बेसिकली सोशलाइजेशन फैक्टर है। हाँ, और अगर हम इसको करें कि यू सी साइंटिफिकली करेक्ट, साइंटिफिकली वैलिड और साइंटिफिकली इनवैलिड। साइंटिफिकली इनवैलिड जैसे ही एजुकेशन बढ़ेगा तो कम होता जाता है, और जैसे ही साइंटिफिकली वैलिड है ये ऊपर आता जाता है एजुकेशन बढ़ने से। लेकिन जब हम बाइवेरिएट वो लेते हैं तो दे ऑलवेज क्रॉस एट 50%, हाँ, और 50% से अगर ऊपर हो जाए तो दैट बिकम्स डेमोक्रेटाइजेशन। हमने बात किया था ना डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि मेजोरिटी इज अबाउट 50%। सो दिस IDI इज द पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। एक फिनोमेना 50% को कब क्रॉस करता है, किस लेवल पे? तो दिस xi इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ए साइंटिफिक फिनोमेना। तो दिस डिस्टेंस बिकम्स कि हमें करीब 8 साल का एजुकेशन, सोशलाइजेशन इन एजुकेशन चाहिए इस फिनोमेना के लिए टू बिकम डेमोक्रेटाइज। This is basis of cultural distance and mapping of cultural distance। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है जब हम दूसरे फिनोमेना को लेते हैं। दिस इज शेप ऑफ द अर्थ। अब देखिए,
वो 50% वाले एक्सिस को कहीं क्रॉस ही नहीं करता है इसमें, बट वो माइनस में जाके क्रॉस करता है. दिस इज इन माइनस, बट कैन वी कॉल एनीथिंग माइनस एजुकेशन? वी कांट. एंड द एक्सप्लेनेशन टू दिस इज कि शेप ऑफ अर्थ पढ़ाने की हमें जरूरत नहीं है क्लासेस में. आवर सोसाइटी टेक्स केयर ऑफ इट. अगर वो अनपढ़ भी होगा, सोसाइटी ये बता देती है कि यार धरती का शेप जो स्फीयर है, तो उसको याद हो जाएगा. सो दैट बिकम्स, इवन एजुकेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर सम फिनोमेना टू बिकम पार्ट ऑफ पब्लिक कल्चर. तो मोर देन 50% लोगों को एजुकेशन की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि धरती गोल है. तो दैट्स व्हाई इट्स कल्चर. तो कल्चर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. और सेकंड पार्ट इज, आप कितना ही पढ़ा लीजिए इवोल्यूशन, पीएचडी कर लीजिए, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो इवोल्यूशन पढ़ा एजुकेशन देने के बाद भी. हो सकता है मैंने आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई हो सकता है मैंने, या मेरी एज ज्यादा हो गई है तो मैं भूल गया हूं कि जब मैंने 10वीं में या 12वीं में इवोल्यूशन के बारे में, डार्विनिज्म के बारे में पढ़ा हो. हाँ, सो डोंट इवन कन्वर्स एट 21 कि वो पीएचडी वाली स्केल पे भी नहीं मिलते हैं जाके कॉल. सो दिस इज ऑल बेसिस ऑफ आवर कल्चरल डिस्टेंस. इसका बहुत फ्लेक्सिबल है ये जो नापना है ना, मैपिंग जो है ना, बहुत फ्लेक्सिबल है. अगर हमें ये जानना है ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन कि केरल के लोगों के लिए एस्ट्रोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ कहाँ प्लेस हैं, तो मान लो केरल का प्रोविंस ले, केरल प्रोविंस को हम देखें तो शेप ऑफ द अर्थ इज माइनस, रोटेशन ऑफ अर्थ डे एंड नाइट. वो 3 साल एजुकेशन चाहिए. हाँ, इक्लिप्स और सब चीजों के बारे में 6.2 चाहिए, सम 6.6 टू नो अबाउट गैलेक्सी. इवोल्यूशन जानने के लिए 7.4 चाहिए. दिस इज फॉर केरला बिकॉज इट्स हाईली एजुकेटेड स्टेट ऑफ द कंट्री, है ना. तो कुछ लोग अभी भी माइनस. दिस इज शेप ऑफ द अर्थ. बट अब दूसरी तरफ देखिए, ये देखा कि हमने कि एक प्रोविंस कैसे प्लेस्ड है ओवर दीज साइंटिफिक फिनोमेना. हम दूसरी तरफ भी कहते हैं, एक साइंटिफिक फिनोमेना लीजिए, शेप ऑफ द अर्थ. दिल्ली कहाँ प्लेस है, केरल कहाँ है? हाँ, दिल्ली यहाँ प्लेस्ड है, केरल यहाँ प्लेस्ड है, आंध्र प्रदेश यहाँ है, हाँ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम. They are on positive side and some states are on negative side. So this is the flexibility. This is the beauty of this model. Whether you want to know how a subset of population is placed against these phenomena, or a phenomena is placed according to the states. तो दोनों तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. That's a flexibility and the beauty of this cultural distance model. These are some highlights of this. So how do cultural groups or subgroups configure material realities? What explanations of natural phenomena are prevalent among the public? और अगर हम जानना चाहते हैं गैप कितना है, don't know what is the knowledge gap, right? Cultural distance model, groups can be computed, can be mapped. Even scientific phenomena can be mapped. Even subgroups can be mapped. What is the advantage of this? इसका advantage क्या है? इसका advantage ये है कि जब हम science communication के लिए जाएं तो we should keep in mind all the cultural aspect of that subgroup. केरल में strategy वो नहीं हो सकती जो नॉर्थ ईस्ट में चाहिए हमें. महाराष्ट्र में वो स्ट्रेटजी नहीं ले सकते हम. पहले हमें महाराष्ट्र के पॉपुलेशन को देखना पड़ेगा. तो महाराष्ट्र में वो स्ट्रेटजी नहीं हो सकती जो बिहार में होनी चाहिए. सो कश्मीर में वो स्ट्रेटजी नहीं हो सकती जो तमिलनाडु में चाहिए, है ना. एंड यूज ऑफ मास मीडिया चैनल.
फोक कल्चर, आप कहते हैं ना कि कौन सा मीडिया इस्तेमाल करना है, टीवी बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा पीपल रिलाई ऑन प्रिंट मीडियम, उसको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं, न्यूज़पेपर्स को, इवन टीवी को और रेडियो को नहीं माना जाता है। एंड देन वी कैन गो फॉर लॉन्गिट्यूडनल सर्वेज कर सकते हैं टू नो द शिफ्ट्स। अब हमें ये जो 1989 से 2019 तक करने का जो एक और जो फायदा हुआ कि वी कुड मेजर कल्चरल डिस्टेंस ऑफ ए फेनोमेना, और ये घट रहा है या बढ़ रहा है, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो इवन अमंग द illiterate people who said that they never went to that school, उनमें भी कल्चरल डिस्टेंस कम हुआ है। मीन्स सोसाइटी ने अभी भी लोगों को बहुत कुछ सिखाया है अबाउट साइंस। Then a cursory look at the scientific engagement model, जिसको Brian, it's not brain, it's Brian Wayne ने 1990 में दिया कि he was working on, like I told you about the sheep farmers. तो sheep farmers ने साइंटिस्ट को बताया कि भैया चेरनोबिल डिजास्टर का अगर इफेक्ट को एसेस करना है तो we tell you how to collect information, and then that became two-way process कि जितना साइंटिस्ट पब्लिक को बताते हैं, पब्लिक को भी उतना ही साइंटिस्ट को बताना पड़ेगा। इट्स ए टू-वे प्रोसेस। और ये बिल्कुल सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस, जेडी बर्नाल बहुत पहले एक साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कहा दिस साइंटिफिक ऑल साइंटिफिक डेवलपमेंट्स आर सोशल एंडेवर्स। अगर सोसाइटी में उनकी नेसेसिटीज नहीं होती तो शायद ये साइंटिफिक डेवलपमेंट्स नहीं होती। इवन टुडे all the scientific developments, they are backed by social issues. अगर सोसाइटी में कोई नीड नहीं होगी तो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स नहीं होगी, राइट? हमें एटॉमिक बम से न्यूक्लियर बम की तरफ जाना है, this is need, so we will work on it and then we'll find out something. Okay, so इसके कुछ और भी मॉडल हैं कि टू वे साइड है तो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है पब्लिक के अंदर। किसी भी फिनोमेना के ऊपर डेलिब्रेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारी चीजें एक्सेप्टेंस से बाहर हो जाती हैं। उसकी इकोनॉमिक्स देखना भी बहुत जरूरी है। I tell you, I worked with CSIR. CSIR developed about 400 technologies for farmers, but only 15% they were adopted by the farmers. अब 50 टेक्नोलॉजी को फार्मर्स ने एक्सेप्ट किया। They didn't accept all the technology developed by CSIR. Why? Because economics was behind it. The farmers can't pay for it. They said, no, we'll manage everything without the technologies. So economics of science is too important. Sociology of science is too important. And nowadays, a politics of science, even politics is there. पार्टिसिपेटरी होना बहुत जरूरी है पब्लिक एंगेजमेंट ऑफ साइंस में। तो साइंटिस्ट शुड नॉट टेक as granted कि they know everything. No, there are people who know. And acceptance कहाँ होनी है? आपकी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स है उनकी एक्सेप्टेंस कहाँ होनी है? एक्सेप्टेंस आपके सोसाइटी में होनी है। बीटी कॉटन की एक्सेप्टेंस सोसाइटी में होनी है, फार्मर्स नहीं करनी है। It's not accepted only by the scientists who developed it. वो फिर Monsanto ही करेंगे उसको फिर accept, not the farmers. Even this CRISPR technology, I told you, but gene editing technology, it's not. That's why all the big universities, all the big research institutions, they have ethical committees. Ethics की बात करते हैं वो सारी. No, it's not.
And that's why that Human Genome Project has been kept in the cold storage. 80s में Human Genome Project शुरू हुआ, that was not accepted throughout. Public engagement is also called post-normal science. वो नॉर्मल चीज नहीं है कि साइंस वाले साइंस जानते हैं और दूसरे लोग साइंस नहीं जानते हैं, हाँ? तो पब्लिक को एंगेज करना, अजम्पशंस को दूर करना, राइट, पब्लिक को करेक्ट करना, ये नहीं समझना लाइक बहुत सारी चीजें हैं ना जो बड़ी स्ट्रेंज चीजें हैं, विकेट चीजें हैं, उनका सॉल्यूशन भी है। और वन प्रॉब्लम इज नॉट हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन, देयर आर 2-3 सॉल्यूशंस। साइंटिफिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, सोशल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, राइट। सो इसलिए पब्लिक को एंगेज करना, पब्लिक को डेलिब्रेशन में इन्वॉल्व करना इज टू इम्पॉर्टेंट। दिस इज न्यू फिनोमेना। इवन द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस आपके यहाँ कितनी हैं, ये भी इस पब्लिक एंगेजमेंट ऑफ साइंस में लिया जाता है। और सोशल नोशंस एंड साइंटिफिक नोशंस दे आर शुड बी बैलेंस्ड। ऐसा ही नहीं है, there are 5 factors which are important for this public engagement of science, right? Establish why you want to engage with the public. Clearly identify your goal. अपने गोल को बहुत क्लियर करना पड़ेगा साइंटिस्ट को, है ना? And listen to these social groups. उनसे बात करनी ही पड़ेगी, उनकी सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट करना है, नहीं करना है। डिबेट को टिल्ट करना है तो that's constantly and consistently हमें पब्लिक से बात करनी पड़ेगी, हाँ? और मीनिंगफुल एंगेजमेंट तभी हो सकता है when we engage both the sides. एक और टर्म आई है, सिटीजन साइंस। ये आई है अभी, साइंस इज डन बाय नॉन एक्सपर्ट्स, बट आई विल से दैट्स द ओल्डेस्ट फिनोमेना। सिटीजन साइंस इज द ओल्डेस्ट फिनोमेना। सबसे पहले साइंस जो है नॉन एक्सपर्ट्स से ही शुरू की गई है, बट वी आर कमिंग बैक टू दिस। सम पीपल दे कॉल इट कम्युनिटी साइंस, सम पीपल कॉल इट क्राउड साइंस, सम पीपल कॉल इट क्राउड सोर्स साइंस, कि क्राउड सोर्स है उस साइंस का। Some call it, it's a very typical term in China, street science. When common people, they develop science. All innovative ideas, they are like part of this citizen science. आज के दिन फार्मर्स अपने इक्विपमेंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, उसको किसी साइंटिस्ट के पास जाने की नहीं है कि इसको एडजस्ट कर दीजिए। प्लॉक को, हैरोज को, ट्रैक्टर को, पानी निकालने वाले पंप को, सो वो अपने आप एडजस्ट करता है, अपने आप अपनी जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल करता है। बस एक ही बात है कि अगर ये कॉन्साइड हो जाए कि सिटीजन साइंस जो है वो कुछ ऐसे पैरामीटर्स को इस्तेमाल करे विच कॉन्फॉर्म विद साइंटिफिक 4 मेन फीचर्स अगर हम कहें तो बहुत अच्छी बात है। एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन साइंटिफिक डेवलपमेंट, कोई भी, इट्स नॉट प्रॉपर्टी, कॉपीराइट नहीं है, प्रॉपर्टी राइट नहीं है उसका कि साइंटिस्ट ही साइंस कर सकता है ना। उसके अगर प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है, साइंटिफिक प्रोटोकॉल, साइंटिफिक मेथड जो होता है उसको प्रोटोकॉल को करता है, वो डेटा जनरेट करता है सो दैट इवन साइंटिस्ट कैन अंडरस्टैंड एंड कैन यूज इट, सो दैट बिकम्स मोर रियलिस्टिक। और वो कंक्लूजन्स निकालने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। एंड पीपल कैन वर्क टुगेदर, पीपल एंड साइंटिस्ट बोथ दे वर्क टुगेदर। I wanted that more should be covered on public understanding of science and how we conducted like large-scale survey studies, but sometime next time or whatever. For today, I say thanks. I should put my telephone numbers if anyone in the long run, because science communication is not a one-day phenomenon. It's a continuous process, even public understanding of science and whatever. So 9968
492949, or Dr. Shweta has my telephone number. Thanks a lot. That's for the day. Now this session is open for any question, because I didn't encounter any question during the lecture. So what I say, stop sharing, whatever. I think that's fine. That's fine. Vikas, it's fine? Yes, sir. Yes, sir. It's good. Yes, now it's open to everyone. Don't think that your question is right or wrong. No question is wrong. First thing. Dr. Shweta? जी हाँ, can you trigger this? गुंजन ने Interactive hand raise session. किया है. हाँ. थैंक यू सो मच मैम. गुड आफ्टरनून सर. सर मेरा नाम गुंजन है और मैं रामलाल आनंद कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बीजीएमसी सेकेंड ईयर की. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया, जैसे हम मिथ्स होते हैं, कुछ होते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ मिथ है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन हम इतना श्योरिटी से नहीं कह सकते. हो सकता है कि आगे जाकर, जैसे अभी वो चीज़ हमें नहीं पता, आगे जाकर हम उस पर कुछ ऐसी रिसर्च हो जाए और ये प्रूव हो जाए कि हाँ उसका साइंटिफिक रीजन है, तो उसको मिथ कहना ठीक रहेगा? That's very good. I didn't touch it because I knew that something should come out of it. Magic भी सुना है. That's very close to misbelief and all that. पहले तो ये बताओ कि मिसबिलीफ क्यों है हमारे यहाँ? हाँ, मिसबिलीफ पैदा किए जाते हैं. पहली बात, अगर आपके पास डर नहीं बिठाया जाएगा तो आप किसी दुकान पे जाएंगे नहीं. और अब तो ये हाल है कि हमें भगवान से भी डराया जाता है. एक तरफ कहते हैं कि भगवान सब कुछ देने वाला है, वो सबको कहा जाता है, ये ना, आई डोंट नो वेदर इट्स फाइन, इट्स करेक्ट और नॉट, लेकिन ये कहा जाता है. अरे जब इतना सब कुछ देने वाला है, सब कुछ करने वाला है, तो व्हाई शुड वी अफ्रेड ऑफ हिम? है, नहीं जाना चाहिए ना, हमें डरना नहीं चाहिए उससे ना, कोई भी काम करते हुए. और मिसबिलीफ होना, मैं बता देता हूं, पीपल दे वांट इजी सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स, है ना. कुछ है जो पुराने चले आ रहे हैं, वो टूट भी रहे हैं आजकल. शायद मैं नहीं मानता कि भी बिल्ली रास्ता काट जाए तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सैटरडे को मुझे ब्लैक शर्ट पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए. आई डोंट बिलीव इन दैट. ये टूटते भी हैं, लेकिन नए भी पैदा होते हैं, पैदा किए भी जाते हैं. तो एक तो होता है कि they have soft targets. All those who want to have misbeliefs, जो superstitious है ना, मैं भी बहुत सारे मैजिक करता हूँ. जब मैं पैरों से किसी कपड़े पे चलता हूँ, लाल निशान आ जाते हैं. मैं अपने सिर पे आग जला के चाय बना सकता हूँ, राइट. मैं चाकू से किसी बर्तन, खासकर जो पतली नेक वाला बर्तन होता है, उसमें चाकू डाल के उसके भरे चावल के या दाने को चाकू से उठा सकता हूँ, है ना. मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ. मैं नारियल को काट सकता हूँ, उसमें से लाल रंग निकलेगा, उसको, जिसको ब्लड कर दिया जाता है ना. मैं जीभ को आई कैन पास थ्रू. मैं किसी दिन और मजा आएगा जिस दिन ये मैजिक दिखाएंगे हम आपको. हाँ, तो दीज आर बीइंग जनरेटेड. और वो ये भी रखा जाता है कि एक्चुअली the language of those superstitions very close to our culture. साइंस की लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल होती है ना. ये बात होती है, इसलिए बिलीफ रह जाते हैं. अच्छा, फिर क्या होता है कि सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जाता है. सॉफ्ट टारगेट मैं बता देता हूँ. सॉफ्ट टारगेट, किसी आदमी को कहो कि तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा, तो आदमी कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा. किसी औरत को कहो कि तुम्हारे छोटे बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा, राइट. सो व्हाट विल हैपन? Totally different scenario will be created. So those who create misbeliefs, they find out soft targets.
एंड दे प्रोवाइड इजी सॉल्यूशंस। वो कहेंगे कोई बात नहीं है, आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, आई कैन परफॉर्म हवन फॉर यू, दैट्स फाइन। तो मुझे लिए बहुत आसान लगता है कि यार मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा और मेरा सब कुछ हो गया। ये जो शनि का प्रकोप है ये सब हट गया हमारे से। वन मैजिक आई टेल यू गुंजन, Yes, sir. एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया मेरठ में कुछ 6 साल पहले। एक दिन मेरठ के एक मंदिर में कुछ सिक्के चिपक रहे थे, आप लेके जाइए सिक्का, और सिक्के चिपक रहे थे, और सिक्के चिपक रहे थे तो जिसका चिपक रहा था तो भाग्यशाली था, जिसका नहीं चिपका वो अभागा था। तो दैट गर्ल केम टू दैट टेम्पल, शी ट्राइड टू स्टिक दोज coins, didn't stick, and she committed suicide, and we went there. अब देखिए आप, मंदिर के अंदर हमेशा घी तेल सब कुछ जलता रहता है, Yes, sir. घर के बने होते हैं मंदिर ज्यादातर। तो आप, हमने क्या किया, वी वेंट टू दैट चैनल, जिस चैनल ने ये किया था, तो उनके सामने, हमारे सामने वो ना जो बोर्ड होता है लिखने का, राइटिंग बोर्ड, वो ग्रीन बोर्ड था। तो मैं कुछ ट्राई करके गया था अपनी किचन में। आप किचन में भी देखिए, जहाँ से वो होती है ना चिमनी, उसके बगल में देखिए बहुत ज्यादा तेल और घी वहां होता है, फ्यूम्स के साथ जाता है। आप उस पर चिपकाइए, सिक्का चिपक जाएगा। तो बोर्ड के ऊपर हमने हल्का सा तेल लगाया और वहां पे सिक्का चिपक गया। अब मंदिर में भी ऐसा ही होता है, कहीं कोना निकला होता है पत्थर का, किसी जगह फ्यूम ज्यादा होते हैं, किसी जगह ऑयल कंटेंट कम होता है, किसी जगह ज्यादा होता है। जहाँ ज्यादा होता है वहां सिक्के चिपकते हैं, जहाँ नहीं होता है नहीं चिपकते हैं। बट to keep all these misbeliefs sustaining in the society is a big business. मैं ये कह रहा हूं बहुत बड़ा बिजनेस है ये। क्या साईं बाबा मना करता है कि गुरुवार को ना जाएं, मंगलवार को चले जाएं? तो और क्या मंदिर जाना जरूरी है जब ये कहते हैं कि भगवान सब जगह है? और लेकिन ये बदल रहा है, देखिए मैं बताता हूँ कैसे बदल रहा है। आजकल आप जाइए सड़क के ऊपर, मान लो कोई सड़क के ऊपर कोई टेम्पल है, कोई गुरुद्वारा, कोई भी रिलीजियस प्लेस है, वो जूते उतार के भी अंदर नहीं जाते, बाहर से ही बाय बाय कर देते हैं, चलो भगवान यहीं से सुन लेगा हमारी ना। गाड़ी में बैठे बैठे भी सिर झुकाते हैं या पीपल। तो मिसबिलीफ चेंज होते हैं बट नए जनरेट किए जाते हैं, है ना। और दे आर वेरी, द लैंग्वेज इज वेरी क्लोज टू आवर कल्चर, इसलिए हमें एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी हो जाती है उनकी। नहीं ये ठीक कह रहा है। निर्मल बाबा के दरबार में भी उतने ही लोग जाते हैं शायद जितने साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाते हैं लोग, है ना। वो चप्पल पहनने की बात करता है, वो समोसा खाने की बात करता है, वो पता नहीं क्या क्या बात करता है। तो पैदा किए जाते हैं, उनकी भाषा हमारे से ज्यादा अच्छी है, इसलिए लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। और इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी अब लाइफ में बहुत ज्यादा है। हम ना बहुत ज्यादा पहले से सिक्योर होना चाहते हैं, हम सब कुछ जानना चाहते हैं कि 50 साल के बाद मेरे साथ क्या होगा। तो दे कीप ऑन गोइंग, है ना। एक और मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम इन अ शताब्दी फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। तो एक सीट होती है जिसके टेबल बीच में होती है, दोनों तरफ सीटें होती हैं। तो वहां सब लोग बैठे हुए थे, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग, चैटिंग टू विद अ पर्सन। तो उसने कहा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा भी एक मीडिया इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, कुछ इस तरीके का काम करते हैं। तो नेक्स्ट टू मी वाज अ पंडित, ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, और ही सेड दैट आई एम ए एस्ट्रोलॉजर। जब उसने कहा कि एस्ट्रोलॉजर है तो किसी ने मेरे से बात नहीं की। फिर everybody gathered around the astrologers. कोई हाथ दिखा रहा है, कोई अपने बच्चे के बारे में पूछ रहा है, कोई किसी के बारे में पूछ रहा है। Nobody talked to me. So this is our society, है ना। और वो इस तरीके से चलता है। That's why we are with all these misbeliefs. But we are the only people who can break it. That's why. Gunjan? Yes, sir. Thank you so much, sir. That's right. Yeah. विकास ने हैंड रेज किया है, पूछे अपना सवाल विकास। Yes, विकास। Yes, sir.
Sir, I'm a student of third year BJMC. Can you, Vikas, can you switch on your video? Yes, yes, sir. Language is one, body language is another one, face expression is another one. Yes, that's right. Sir, I am third year student of journalism and mass communication from Ramlal Anand College. My question is, sir, it's two-part question. Sir, एक की आपने जिन मॉडल्स की बात की, कम्युनिकेशन मॉडल्स की बात की, वो हमारे एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो हमने इस पूरे सेशन के स्टार्टिंग में, इस पूरे Can you keep your mic closer to your mouth? हाँ. यस कि सर हमारा ये क्वेश्चन था कि क्या हम अगर साइंस हमने नहीं पढ़ा है तो क्या हम साइंस कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन में आ सकते हैं या नहीं, तो इसका एक ये आंसर देता है, लेकिन क्या इसका यूज़ हम और भी डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशन मॉडल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं? जैसे एग्रीकल्चर का भी कुछ पार्ट है जो साइंटिफिक है और उसको लोगों को समझाया जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमी भी एक पार्ट है, आज जो डाटा साइंस और कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है वो भी एक पार्ट है, तो वहाँ पे क्या इसका यूज़ किया जा सकता है? When I defined the cultural distance model, I said it's not only scientific. I have kept scientific into brackets. Not only scientific idea, economic idea, even political idea become part of, which was part of जो politicians जानते हैं, that becomes part of the public. उसको भी इसी तरीके से travel करना पड़ेगा. Yes, it's true for every phenomena. And जब मैंने जो एग्जाम्पल दिया था एक शेफर्ड का, इट्स नॉट ए कॉपीराइट ऑफ साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड साइंस. ही मे बी नोइंग अबाउट साइंस, ही मे बी लिटरेट अबाउट इट, but may not be exactly the scientific. That's why this scientific temper term has been coined. Scientific temper means to live a rational life, to see things in a rational way. जब मुझे कोई ये कहता कि वहां मैजिक है जी, आज देखिए चलिए वहां मैजिक हुआ आज, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेस्पॉन्सेस. पहला होगा हाँ यार कोई मैजिक जरूर मैजिक हुआ होगा, चलो मैजिक देखने चलते हैं. दूसरा, विकास जैसे लोग होंगे ये कहेंगे नो, इट्स नॉट मैजिक, इट्स ऑल साइंस, आई शुड गो एंड फाइंड आउट व्हाट इज. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल है, बिकॉज आई एम स्टेइंग इन दिल्ली and very close association with Delhi University. I was searching for my PhD in science communication, public understanding of science. I went to anthropology department. और जिस दिन मैं गया उससे 3 दिन पहले एक विच, एक भूतनी, सो कॉल्ड भूतनी नागलोई में थी. और जिन टीचर से मैं मिला, इंसिडेंटली ये हुआ कि she was also staying in नागलोई. उस भूतनी की एक खास बात थी, वो प्याज मांगती है, प्याज को काटती है अपने नाखून से, और जब प्याज कटता है तो आदमी मर जाता है. So strange, like इतने स्ट्रेंज चीजें होती हैं जो जितने स्ट्रेंज चीजों के बारे में बात करते हैं. लेकिन एक खास बात थी, अगर आप हेना का पाम फुल ऑफ और तेल का अगर पाम आप अपने घर पे छाप देते हो, वो आपके घर पे नहीं आएगी. तो इन ड्यू कोर्स ऑफ माय डिस्कशन विद हर, आई फाउंड दैट व्हाट शी सेड, दो आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, बट फॉर सेफ्टी पर्पज आई पुट ऑल द पाम्स एट माय डोर स्टेप्स. ये है जो गुंजन का भी सवाल था कि मिसबिलीफ जो है ना, वो अब नहीं इतना इजी सॉल्यूशन है ना, या लगा लो ना, क्या जाता है ना. और फिर ये भी कहो कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ, मतलब मैं बिलीव नहीं करता हूँ इन चीजों में. मींस आज के दिन अगर मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा लोग दोनों कंडीशन में बनाना चाहते हैं. चलो यार भगवान को भी खुश कर लेते हैं, साइंस को भी खुश कर लेते हैं. बट इट्स योर जनरेशन विच हैज टू टेक स्टेप्स for this. और किसी भी एरिया में के लिए दिस इज ट्रू. एंड मैंने छोड़ दिया है बहुत सारी चीजें, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स विच योर जनरेशन विल एनलार्ज इट. है विकास? दैट्स फाइन. एनीबॉडी एल्स? जस्ट नेक्स्ट. और कोई स्टूडेंट जो अपना सवाल करना चाहता है? एनीवन एल्स? मैम एक क्वेश्चन मैं पूछूं?
हाँ जी, गीतू पूछें आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। यस मैम मैं कंप्यूटर में हूँ तो मे भी ब्लर आएगा, बट मैं कर देती हूँ ऑन। जी। आई गेस दिख रहा होगा। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपने लेक्चर में सुपरस्टिशियस और फेथ और इन सब के बारे में बताया, तो अभी आई गेस 1 या 2 साल हो गए हैं, एक बहुत इंसिडेंट पूरे इंडिया में बहुत हुआ कि एक चुटिया काटने वाली कोई गैंग आ गई है। इसका रीजन अगर आप बता पाए तो, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जिसने चुटिया काटी थी उसको पीटा बहुत गया था एक जगह पे, है ना। दैट गैंग इट्स नॉट इंडिविजुअल, इट्स गैंग। एक मंकी मैन भी बहुत पहले आया था। जी। बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स पैदा नहीं हुए थे जब हमने गणेश जी ने दूध पिया था, है ना। और मेरा जो ऑफिस रहा है मेरा पूसा इंस्टीट्यूट के बाहर रहा है, तो वो कुछ ऐसा ही है जो चुटिया काटने वाला है, वो कुछ ऐसा ही है जैसा गणेश जी ने दूध पिया था। मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क वाज डिस्ट्रॉयड, स्पॉइल्ड। और हमारे ऑफिस के बाहर पूसा इंस्टीट्यूट के बाहर एक ना वो कॉबलर मोची बैठता था। सो वी वेंट टू दिस आज तक, जो आज तक ऐसा नहीं है, पहले आज तक एसपी सिंह चलाते थे उसको, 1 घंटा चलता था पहले आज तक, 96 की बात है शायद वो। तो कॉबलर जिसपे अपने जूते ठीक करता है, कील ठोकता है, वो तीन पैरों वाला होता है, ट्राइपॉड टाइप होता है, उसको चेंज करके करता है। तो ही टुक दिस ट्राइपॉड टू आज तक, और ही सेड कि मेरा ट्राइपॉड भी दूध पीता है जी, तेल भी पीता है, पानी भी पीता है, सब कुछ, सारे लिक्विड पीता है वो, तो अल्कोहल भी पीता है, एल्कली भी पीता है, जो भी लिक्विड है सारे पीता है वो। एनीथिंग, कैपिलरी एक्शन एक अलग बात हुई, लेकिन एनीथिंग which is having some tip outside and is wet can generate capillary action. इसलिए जिस दिन दूध पिया था उस दिन भी गए हम, नेक्स्ट डे भी गए, और हम घर से वो मूर्तियां भी लेके गए जो हमारे घर पे सरस्वती की किसी ने दी हुई थी, कभी किसी ने दी हुई थी, एंड वी मेक इट वेट। और हमने कहा कि हमारी सरस्वती आज भी दूध पी रही है। लेकिन क्या है, कैपिलरी एक्शन को आप एक्सप्लेन करने लगेंगे तो आदमी थोड़ी देर के बाद कहेगा रहने दो यार, बस समझ में आ गया। लेकिन गणेश जी ने दूध पिया समझाओगे तो बहुत आसान है समझाना, कि जाओ मंदिर में और गणेश जी को दूध दोया ऑफर कर दीजिए, दैट्स वेरी इजी। दैट्स व्हाई ऑल बाबाज आर मोर एफिशिएंट कम्युनिकेटर देन अस। हम इतना कम्युनिकेट करके नहीं समझा सकते साइंस को जितना बाबा जी लोग। निर्मल बाबा इसलिए है ना, रामदेव बाबा ज्यादा अच्छे कम्युनिकेटर, आशाराम ये ज्यादा अच्छे कम्युनिकेटर हैं। द सेम थिंग हैपेंड विद इट। ये और एक गैंग नहीं था, गैंग में बहुत सारे मेंबर थे, दे वर बीटन इन बिहार। जब एक बच्ची की चुटिया काटते हुए उठ गई थी तो उसको बहुत पीटा गया, उस गैंग को, गैंग के एक मेंबर को, है ना। हाँ ये हुआ है, यस मैंने भी बहुत सारी चुटिया अपने उसमें बांध के रखी थी चारपाई पे कि कोई काट ना ले। I touched it. Anyway, Thank you, sir. हाँ, these are the things which are propagated. Yes, that is it. कोई और सवाल करना चाहता है यहाँ पे? मुझे लगता है कि अब सवाल यहाँ पे फिलहाल कोई स्टूडेंट नहीं करना चाह रहा है, लेकिन एक जो रिमार्क आया है सर आपके लेक्चर के लिए, वो आपसे शेयर करना चाहूंगी, चैट बॉक्स में है। बादल मिश्रा ने ये लिखा है कि आपके जितने भी एग्जाम्पल्स रहे हैं लेक्चर में वो उन्हें बहुत पसंद आए हैं, और वाकई में जो बहुत ही टेक्निकल टॉपिक्स थे, जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे थे तो यही एक ऑब्जेक्टिव था कि कौन इन टॉपिक्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझा सके। तो जावेद सर सजेस्टेड योर नेम, तो आपको हमने अप्रोच किया एंड फॉर्चुनेटली आपने समय दिया। तो ये बादल मिश्रा ने ये लिखा है कि आपके सभी एग्जांपल्स बहुत ही ऑसम है सर। It's very close. This topic is very close to my heart because we were involved in this cultural distance model. Yes, sir. Though we started with science communication.
एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिला है हम लोगों को आपसे इंटरेक्ट करने का, एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने खुद ये मॉडल्स पर काम किया है, डेवलप किया है। आई थिंक अभी अगर यदि किसी का सवाल नहीं है तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर राकेश कुमार सर को, बीजीएमसी रामलाल आनंद कॉलेज। Dr. Shweta, I want to add one thing. जी. Though I said to you that I'm not comfortable with online sessions, whenever we get time, we should have face-to-face classes. And I have much more about public understanding of science. Public understanding of biotechnology and cloning is again very close, which survey I conducted amongst this Delhi University students and Kurukshetra University students. तो वो बच्चों के लिए कुछ और होगा, but again face to face is my cup of tea. जी सर, कोविड पैंडेमिक है और यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस है, इस मजबूरी वश हम लोगों को we have started our classes, physical classes. Yes sir. We have started offline classes in Rewari. Okay. जी, मैं आमंत्रित करती हूँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर राकेश कुमार सर को अपने विचार शेयर करें और साथ में धन्यवाद ज्ञापन भी दें। इसी के साथ ही मैं विकास और गीतू से कहूंगी कि वो फीडबैक फॉर्म जो है वो भी शेयर करें, और एक बार फिर से सभी को फॉर्म फिल करना जरूरी है, इसी के बेस पे आप लोग की अटेंडेंस कंसिडर की जाएगी। सर प्लीज, राकेश सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आज पूरा विषय आज लेक्चर का रहा है और जो अंत में सवाल जवाब हुए हैं, सर मैं हम लोग भी कक्षाओं में क्लास में पढ़ाते हुए इन विषयों पर चर्चा करते हैं, और निरंतर ये जो विषय है आपके हृदय के नजदीक है, हमारे भी हृदय के नजदीक है, क्लोज टू आवर हार्ट। और जो साइंटिफिक टाइम पर मैं बच्चे का सवाल सुन रहा था कि क्या विज्ञान पढ़ना जरूरी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज है वैज्ञानिक चेतना का होना, साइंटिफिक टेम्पर का होना, एक रैशनल लाइफ जीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सर मुझे लगता है कि सर जो विज्ञान अपना बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, और आप जैसे लोग जिन्होंने जीवन दिया है इस क्षेत्र के लिए, बहुत लंबा समय बिताया है, और उसके हजारों लोगों को, लाखों लोगों को आपने शिक्षित किया है, और आज हम भी आपके उन कुछ विद्यार्थियों में से शामिल हो गए हैं। और बस मुझे ये लगता है कि दरअसल हमारे समाज का जो पूरा वो वर्ग जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों, चाहे वो राजनेता हों, वो लोग विज्ञान को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। मतलब हमेशा इस तरह के सुपरस्टिशंस को बढ़ावा देने में, अंधविश्वास को बढ़ावा देने में बहुत आगे रहते हैं। तमाम आप देख लीजिए, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सबके फेथ की बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, पर उसका बहुत महिमा मंडन किया जाना, उससे लोग प्रभावित होते हैं। बाबाओं का महिमा मंडन होता है, बड़े बड़े राजनेता जाते हैं बाबाओं के दरबार में, धूप लगाते हैं, तो लोगों को लगता है कि बड़े महत्वपूर्ण है। जब इतने बड़े लोग जाते हैं तो फिर हम तो हमारे सारे कष्ट यहीं से दूर होने जा रहे हैं। लेकिन आपने बहुत सही बात कही कि ये बहुत बड़े कम्युनिकेटर्स होते हैं, तो बहुत सारे साधारण सामान्य जनता अंतर नहीं कर पाती है कि सही क्या है, गलत क्या है, और बहुत दुखों से भरी हुई दुनिया है सर। तो जो दुखों से भरी हुई दुनिया के अंदर थोड़ा सा सहारा दिखाई देता है तो इंसान उस तरफ चला जाता है। तो मुझे लगता है कि इन मिथ्स को तोड़ने की जरूरत है, और सेलिब्रिटीज को, बड़े लोगों को, जो लोग दिखाई देते हैं पब्लिक स्पेसेस में, अगर वो लोग इसको लेकर सामने आए तो मुझे लगता है कि समाज में वास्तविक बदलाव आएगा, और विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना से ही आगे मुझे लगता है कि समाज विकसित होगा। हम कोरोना माता का मंदिर और कोरोना देवता का मंदिर बनाकर इस कोरोना को भगा नहीं सकते, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। लोग पता नहीं मतलब न्यायालय में पहुंच जाते हैं कि मंदिर न तोड़ा जाए, कोरोना का मंदिर न तोड़ा जाए, और गो कोरोना करने से कोरोना नहीं गया, उससे और कहीं भयानक रूप में हमारे सामने आया है। तो बहुत सारे विषय हैं, हमें अपनी प्रकृति, अपने समाज, दुनिया, प्रकृति, एनवायरनमेंट, इन सब को जानने के लिए जरूरी है कि हम इस प्रकृति का आधार माने, और उस आधार को मानते हुए उसके संरक्षण के लिए काम करें। और आपने आज पूरे जो जन सहभागिता को लेकर जो आपने काम किया है सर,
वो कमेंडेबल है, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतना बढ़िया वक्तव्य हमारे लिए लेक्चर आपने दिया है। और ये बात मैं सही कहूँगा कि अगर ये भरा हुआ सेमिनार रूम होता तो वो और ज्यादा आनंद आता, और ये हमारी सीमा है कि आप इस परिस्थिति में हैं, और मुझे भी आपकी तरह ये ऑनलाइन माध्यम सुविधाजनक तो है पर बहुत पसंद नहीं है, पर लेकिन हम चाहेंगे सर जैसे ही ये सब चीजें ठीक होंगी और हम आपको जरूर अपने सभागार में बुलाएंगे। तब देखिएगा, आज यहाँ पर 38 हैं, उस समय तकरीबन 150-200 विद्यार्थी आपका भाषण सुनने के लिए वहां बैठेंगे, और आपको 2 घंटे बाद भी आपके साथ लगे रहेंगे कि और बताएं आप। और तो हम लोग बस सर बहुत शुक्रगुजार हैं और विज्ञान प्रसार के भी, और आपके विशेष तौर पे सर कि आपने हमारे लिए समय निकाला, और विद्यार्थी लोग लगातार इसमें जुड़े रहे, बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्वेता, आप कार्यक्रम को आगे समाप्त कर सकती हैं सर की इजाजत से। आपकी आवाज म्यूट है श्वेता, माइक ऑफ है। म्यूट है, माइक ऑफ है। हाँ, वो ऑन एंड ऑफ होता रहता है। थैंक यू राकेश सर अपने विचार साझा करने के लिए, और डबास सर आपका भी धन्यवाद एक बार फिर से। और देखते हैं कब हम आपको एक फेस टू फेस संचार स्थापित होता है हम सभी के बीच में आपके साथ। और इसी के साथ ही फीडबैक फॉर्म आप लोगों से शेयर किया जा चुका है, आप लोग प्लीज उसे फिल करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है डबास सर आपसे, यदि आप जो पीपीटी आपने शेयर की थी वो अगर हमसे साझा कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए एक रेफरेंस मटेरियल होगी। नो इशू, राइट जी राइट, I'll send it to you. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you.